क्या आप साइंटिस्ट बनने के सपने देख रहे हो? क्या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो? क्या आप कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करना चाहोगे? Ma'am, of course, ISRO. ISRO is the dream organization which maximum people wants to join. Similarly, अगर आप मैनेजमेंट साइड इंक्लाइंड है, आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टॉप MBA कॉलेजेस या मैनेजमेंट की डिग्री लेनी है, so what will be your preferred institute? Of course, IIM Ahmedabad. But guys, do you know the man behind it? The man whose vision we are living it. The man who thought that India should launch its own rocket. India should have its own launching station. India के पास best of the best सब कुछ होना चाहिए. Best institutes for management, research laboratory, dance academy, textile institute and whatnot. So he was none other than Dr. Vikram Sarabhai. So hello my dear students, welcome to Byju's exam prep. मैं ऋचा गुप्ता आज सैटरडे स्पेशल नो द लेजेंड्स में आपसे बात करने वाली हूँ डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में. Who doesn't know about him? He is the father of India's space program. इनके विजन को आज हम लिव कर रहे हैं. इन्होंने जो ड्रीम किया था वो इन्होंने पॉसिबल भी किया. इनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल. द वर्ड इम्पॉसिबल ऑल्सो सेज आई एम पॉसिबल. सो गाइज, आज के सेशन में विक्रम साराभाई से रिलेटेड उनके चैलेंजेस, डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन सबकी बात करेंगे इस सेशन में. तो इस पूरे सेशन को वेरियस चैप्टर्स में डिवाइड किया गया ताकि कोई भी टॉपिक मिस ना हो. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले मैं बात करूं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके इंट्रोडक्शन से. So as you guys know that Dr. Vikram Sarabhai was the son of Ambalal Sarabhai and Sarla Devi. His father was a major industrialist and he was one of the wealthiest family. His family was one of the wealthiest family in India. अब विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 में, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले. His family was participating actively in the freedom movement. अब अगर मैं बात करूं कि यार अगर एक बिजनेस है, बिकॉज हिज फादर हैज अ विक्रम साराभाई's father that is Ambalal Sarabhai has a textile business. तो मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है भाई. मैं तो क्या करूंगी, मैं तो अपनी फैमिली लीगेसी को कंटिन्यू करूंगी. मैं क्या करने वाले, इंडस्ट्री संभालेंगे, टेक्सटाइल बिजनेस संभालेंगे. बट there where Vikram Sarabhai differs from us. His interest was not only towards business, his interest was towards science. आपने एक कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. बट ये चीज विक्रम साराभाई जी के लिए वैलिड बिल्कुल नहीं थी. Name the field and he is there. Talk about space research, he is there. Talk about nuclear research, he is there. Talk about textile business, he is there. Talk about pharmaceuticals, he is there. Entrepreneur, innovator, you can call him anything. Institutional builder, a scientist, an innovator. जितना बोलो उनके लिए उतना कम है. इन्होंने हर जगह इंडिया में जहां भी जो इंस्टीट्यूट्स जो कि हमारे यंग माइंड्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने उन इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश किया. सो विक्रम साराभाई वाज बोर्न ऑन 12th August 1919 to Ambalal Sarabhai and Sarla Devi, who were a major industrialist and were participating actively in the freedom movement. अब बात निकल के आती है कि इन्होंने, you can see their family pictures also. So Dr. Vikram Sarabhai, these all pictures I have taken from Google. Now talking about his education, ये तो एक brief introduction हुआ. He was born in Gujarat. Now the next thing which comes is education. Where did he had his education? Preliminary education जो matriculation है, he completed from Gujarat College, Ahmedabad. After that, for his further studies, he went to University of Cambridge. Here, he was doing his studies carrying out research works in natural science. But unfortunately, during the time of 1940s, Second World War was at its peak, and that is the reason Vikram Sarabhai has to return back to India. But इंडिया में भी आने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा. यहाँ पर IISc बैंगलोर में under the guidance of Nobel Prize winner, the popular Indian physicist
Dr. C.V. Raman, as you can see in these pictures, Dr. C.V. Raman के साथ मिलकर, because he was one of his guide also, इन्होंने cosmic rays में अपना research continue रखा. So you can see some of the pictures of Dr. C.V. Raman with Dr. Vikram Sarabhai. Now, IISc Bangalore में अपनी research continue रखी, but afterwards 1945 में Vikram Sarabhai returned back to Cambridge and he completed his doctorate. His thesis were in cosmic rays investigation in tropical latitudes, which was his topic of thesis. वापस 1947 में इंडिया आ गए कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई. Now India was independent, but there were many developments which was to be done. So अब आती है developments की wave जो विक्रम साराभाई ने किया. First and foremost, विक्रम साराभाई established physics research laboratory in Ahmedabad. ये laboratory आज भी है, which is contributing extensively in the field of research. This was established on November 11, 1947. So approximately that time, Vikram Sarabhai was 28 years of age. So can you imagine इतनी कम उम्र में ये सब vision रखना, इन सब के बारे में सोचना. That's also of the young mind's brain. Next, coming further, physics research laboratory तो establish की. इसके साथ ही विक्रम साराभाई ने देखा कि जो उनके पेरेंट्स का टेक्सटाइल बिजनेस है, आज भी ओल्ड तरीके से टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. हमने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, वेरियस मशीन्स, किसी चीज की हेल्प नहीं ली. उन्होंने स्टैटिस्टिशियंस और रिसर्चर्स सबको बुलाकर अब नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. ऑफ कोर्स इनिशियल फेसेस में वर्कर्स, यूनियन लीडर्स सब ने उनको बहुत ऑप्रेस किया, हंगर स्ट्राइक्स किया, रेज किया. बट Vikram Sarabhai has the vision. He knows that अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया तो फॉरेन से मटेरियल सस्ते दामों में आना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे बनाए हुए टेक्सटाइल्स कपड़ों को कोई यूज नहीं करेगा. So can you imagine such a long vision he had? और वहीं पर उन्होंने एस्टैब्लिश किया अटीरा, दैट इज अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन. ये भी उन्होंने 1947 में ही किया. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो विक्रम साराभाई को लगा कि जो मैनेजमेंट की स्टडीज है इसमें एक गैप है और इसीलिए उन्होंने IIM अहमदाबाद 1962 में एस्टैब्लिश किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो आजकल और कई सालों से हमारा ड्रीम इंस्टीट्यूट रहा है. अब बात करूं, ये तो उनकी डेवलपमेंट्स की बात हुई. अब बात आती है चैलेंजेस की. क्या चैलेंजेस फेस किए? तो आप बोलोगे कि मैम रिच वेल्दी पीपल लोगों को भी चैलेंजेस होते हैं. ऑफ कोर्स. अब आप सोचिए 1947 इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, बट आपको पता होगा उस समय हम लोग किससे जूझ रहे थे. हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. सबसे मेजर प्रॉब्लम वाज हंगर. यहाँ पर लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा था, बट विक्रम साराभाई हैज द विजन ऑफ लॉन्चिंग रॉकेट्स, of having its own space organization, of having its own space program. People mocked at him. हंसा लोगों ने. एक न्यूज़पेपर ने तो ये तक पब्लिश कर दिया, इंडिया नीड्स राइस नॉट रॉकेट्स. बट यू नो व्हाट, अगर एक लाइन है फिल्म की, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है. दैट्स व्हाट विक्रम साराभाई थॉट. उनका ये लाइन्स का विजन ही होगा, बट हिज विजन वाज वेरी क्लियर दैट ऑफ कोर्स इंडिया शुड हैज इट्स ओन स्पेस प्रोग्राम, एंड दैट इज वेयर he convinced the government, he convinced that time Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru used to call them Dr. Homi J. Bhabha, Dr. Vikram Sarabhai as mad scientists who were very much mad for their work. He told them that directly nahi par indirectly rocket launching, satellite launching से इंडिया को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है. और वो प्रॉफिट्स होने वाले हैं वेदर फोरकास्टिंग में. हम पहले से ही बता देंगे कि कब बारिश होने वाली है, क्या कंडीशंस रहने वाले हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी. सैटेलाइट्स के थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी, एंड इसके थ्रू जो एक और हेल्प मिलेगी वो होगी सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स की. ये सब बेनिफिट्स निकल कर आने वाले हैं. ऑफ कोर्स
तो चैलेंजेस तो था, चैलेंजेस इसलिए भी था क्योंकि ना तो इंडिया के पास पैसा था, ना इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी थी, ना इंडिया के पास कोई इक्विपमेंट्स थे, बट हमें रॉकेट भेजना था। कैसे पूरा होगा? इसके लिए अमेरिका, फ्रांस, कहीं से पेलोड्स मंगवाए गए, कहीं से कार्गो मंगवाया गया और पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। इससे पहले एक बैक स्टोरी जाते हैं, इससे पहले की एक बैक स्टोरी है कि इंडिया के रॉकेट लॉन्चिंग से पहले, इवन अमेरिका के रॉकेट लॉन्च करने से पहले, यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च किया, जिससे एक कॉन्फिडेंस इंडिया को और आया कि अगर यूएसएसआर लॉन्च कर सकता है, सो व्हाई नॉट डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। सो आप देख सकते हैं इमेजेस, ह्यूमैनिटीज फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक 1957 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था बाय यूएसएसआर। इसके एक साल बाद उन्होंने डॉग को भी स्पेस में भेजा था। आई गेस यू गाइज माइट बी नोइंग अबाउट इट। अब बारी आती है बैक टू इंडिया। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कार्गो लोड सब चीजें अमेरिका, फ्रांस से हम लोग लेकर आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेजेस की इस तरीके से, कैन यू बिलीव, इंडिया का फर्स्ट रॉकेट कुछ इस तरीके से पहुंचा थुम्बा, विच इज नियर तिरुवनंतपुरम। वहां पर हमारा फर्स्ट रॉकेट लॉन्च हुआ इन द अरेबियन सी कोस्ट। तो कुछ इस तरीके से इमेजेस, आई गेस यू गाइस कैन सी, कुछ इस तरीके से असेंबलिंग हुई रॉकेट्स की। और इसी समय आप ये भी चीज आपको पता होगी, आई गेस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो विक्रम साराभाई थे, उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो गाइस, ये कुछ फोटोज है जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरीके से इंडिया का फर्स्ट लॉन्चिंग रॉकेट के पार्ट्स को लेकर आया गया थुम्बा में। ओके, और आपको बता दूं, शायद आपको ये चीज पता होगी या शायद नहीं भी पता होगी, डॉक्टर होमी जे भाभा and Dr. Vikram Sarabhai were very good friends. So Dr. Homi J. Bhabha throughout this process of launching of rockets also helped Dr. Vikram Sarabhai. So ये तो दोस्ती है। चलिए अब मैं बात करूं कि 1962 में इकॉस पर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। However, इसका नाम 7 साल बाद यानी कि 1969 में इसका नाम रख दिया गया इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग इसे इकोस्पर के नाम से नहीं, हम इसे इसरो के नाम से जानते हैं। ये वन ऑफ द पिक है ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई की। तो गाइस, आज आप जानते हो इसरो के बारे में, 1969 में ये स्टैब्लिश हो चुका है। आज की डेट में यहाँ पे मोर देन 16,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं, 14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि अगर मैं आपको बात करूं 1993 में हम लोग ने मोर देन 70 सैटेलाइट लॉन्चेस किए, जिसमें पीएसएलवी, जीएसएलवी एंड विद 88% सक्सेस रेट। तो आज की डेट में अगर हम बोलते हैं कि हम मार्स पे पहुंच चुके हैं, Venus is our next target. So who is the man behind it? He was no other than Vikram Sarabhai. इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। Vikram Sarabhai, as you already know, Dr. APJ Abdul Kalam has worked extensively with him. उनकी ये lines थी, my relation with Vikram Sarabhai was a deeply emotional and intellectual. Let me tell you, अगर आप ग्रेड्स की बात करते हो तो व्हेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेंट टू विक्रम साराभाई सर, ही टोल्ड कि उनके ग्रेड्स बहुत कम थे, बट ही हैड दैट पैशन, दैट डेडिकेशन एंड दैट मोटिवेटेड विक्रम साराभाई टू टेक हिम फॉर द रिसर्च वर्क. So that's the words of APJ Abdul Kalam. Next coming further, you can see the father of ISRO vision. आज हम बोलते हैं हमारे पास अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, हम बाकी देशों से पीछे नहीं है रिसर्च वर्क करने में। आज की डेट में इंडिया सबसे कम पैसों में पहुंच जाता है मार्स तक। ये सब पॉसिबल हुआ एक मैन के विजन के कारण, एंड दैट्स नन अदर देन डॉक्टर विक्रम साराभाई. टॉकिंग नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी नहीं बनाई, सिर्फ IIM अहमदाबाद नहीं इस्टेब्लिश किया, ना ही सिर्फ इसरो, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो विक्रम साराभाई ने इस्टेब्लिश किए, बी इट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, बी इट इन द फील्ड ऑफ एनी अदर प्लेसेस, ही वाज देयर.
सो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये चीज विक्रम साराभाई सर के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। तो ये है लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स व्हिच ही हैड इट। विक्रम साराभाई सर वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर होमी भाभा। ये भी आपको पता होना चाहिए। सो न्यूक्लियर रिसर्च फील्ड में भी विक्रम साराभाई सर का एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट कमिंग फर्दर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स की बात की जाए तो उनको पद्म भूषण मिला 1966 में, पद्म विभूषण मिला 1973 में posthumously, that is after his death. So you can see this is being collected by sir's wife. अब नेक्स्ट बात किया जाए कि इनके ऑनर में क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहली बात, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसमें सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट्स फॉर रॉकेट्स की, ये तिरुवनंतपुरम दैट इज त्रिवेंद्रम में है और ये उनकी मेमोरी में नाम किया गया है। इसके साथ ही 1974 में एक क्रेटर है मून में जिसका आप नाम दिया गया है साराभाई क्रेटर। सो दिस इज द ऑनर विच इज गिवन टू डॉक्टर विक्रम साराभाई फॉर हिज एक्सटेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप बात करें इनके बहुत सारे, जब डूइंग माय रिसर्च वर्क ऑन विक्रम साराभाई हु वाज ही, सो बेसिकली उनके बहुत सारे कोट्स थे जो एकदम दिल को छू गए। जैसे कि इन्होंने ये वाला एक स्टेटमेंट दिया था, ही हु कैन लिसन टू द म्यूजिक इन द मिड्स ऑफ नॉइज कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। सो इट्स लाइक डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बट if you can do some productive work in that bits of crowds, then you can achieve to greater heights. अब इसके बाद मिस्टीरियस डेथ को मैं मिस्टीरियस इसलिए बोलूंगी बिकॉज ये डेथ से 1 घंटा पहले उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बात की थी। वो कुछ डिजाइन स्किल रिगार्डिंग तिरुवनंतपुरम में थे और उसी रात वो बॉम्बे जाने वाले थे, बट मिस्टीरियसली कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो जाती है और इसकी कोई बायोप्सी कुछ भी पोस्टमार्टम नहीं होता है। सो दैट वाज हाईली सस्पिशियस कि 1 आवर पहले अब्दुल कलाम सर से बात होती है, उसी दिन वो कुछ ड्राइंग्स को देखकर, कुछ सैटेलाइट्स की ड्राइंग्स वगैरह को देखकर वो उसी रात बॉम्बे जाने वाले थे, बट देयर वाज अ कार्डियक अरेस्ट। सो थोड़ा सस्पिशंस लाइक होमी जे भाभा देयर वाज अ फ्लाइट क्रैश, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक डाउट होता है। मैंने बहुत सारी स्टडीज रीड की, सबने बोला नथिंग, नो पोस्टमार्टम, कुछ भी नहीं किया गया, डायरेक्टली बोल दिया गया कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट था, नेचुरल डेथ। सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज वेरी मिस्टीरियस। यू कैन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, but his death was very unfortunate to us. Let me tell you, he was just 52 during the time of his death. Can you imagine if he would have been alive, what not we could have achieved, what not. Okay, so आपने देखा कि इसरो ने साइट लॉन्च किया, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टीचिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, जहां पर 2400 विलेजेस 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन प्रोवाइड की गई थ्रू सैटेलाइट्स। इसके साथ ही हमने बहुत सारे और अचीवमेंट्स किए हैं, बट गाइस अगर इसकी फाउंडेशन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने नहीं रखी होती, सो आज हम बाकी कंट्री से बहुत पीछे होते डेवलपमेंट में। 1947 जब इंडिया के पास इतनी सारी प्रॉब्लम थी, अ मैन who was very much rigorous कि नहीं, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए, इंडिया has to launch its own rocket. This was the vision of विक्रम साराभाई। एंड आपको एक बात और बता दूं, इसरो का ग्रो करने का रीजन एक और है कि यहाँ पर लीप फ्रॉगिंग अप्रोच को यूज किया गया। लीप फ्रॉगिंग अप्रोच का मतलब है आप ट्रेडिशनल तरीके से मत चलो, आप यूज करो, आप जो भी आपकी कंट्रीज है जो उन्होंने टेक्निक्स यूज किया है उनको यूज करके आगे बढ़ो, rather than following the old traditional approach. So here is all about Dr. Vikram Sarabhai. Few of the quotes which I found it very heart touching, उसको भी मैंने इन स्लाइड्स में इंक्लूड किया है, so that you guys can also take benefit from it. One of the quotes, I also believe that a person who does not have respect for time and does not have a sense of timing can achieve little. That means what? Time is precious. So जिसको अगर सेंस नहीं है टाइमिंग की, जो टाइम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो बहुत कम अचीव करेगा. So this is one of the things, and there are a number of more quotes by Dr. Vikram Sarabhai. You can go through it, and that's what it is.
सो लास्ट वन ये मेरा बहुत फेवरेट है, हैप्पीनेस ऑफन स्नीक्स इन थ्रू आउट अ डोर यू डिडंट नो यू लेफ्ट ओपन. So that's also one of the quotes. All these pics are taken from Google. And guys, तो ये था Know the Legends के बारे में. ऐसे ही और लेजेंड्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बायजूस एग्जाम प्रेप को. एंड आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. थैंक यू एवरीबॉडी. टेक केयर.